جس نے لاہور کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے, جو جعلی طریقے سے, غلط طریقے سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے, جو کا کے اوپر کی کے اوپر کے لکھتی ہے, وہ مجھے مشورے دے رہی ہے. اللہ کا میری توبہ, مطلب کا کے اب میں سنوں گا. جس کا لیڈر عمران خان ہے وہ پاکستان کا قبول ترین, مقبول ترین لیڈر ہے, اور اس نے ہماری تربیت کی ہے, تو ہم کس کی سنیں گے؟ کس کی سنیں گے؟ یہاں پر پالیسی صرف عمران خان کی چلے گی, یہاں پر راج صرف عمران خان کا ہوگا, اور عوامی راج ہی عمران خان کا راج ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کے تمام ادارے, پاکستان کی یہ جعلی حکومت صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے میں لگی ہوئی ہے. تمام ادارے اور یہ جعلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے. ہم عدالتوں میں جاتے ہیں انصاف کے لیے, عدالتوں کے جج ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہم جاتے ہیں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے, وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو جعلی مقدمات میں ناحق قید کیا ہوا ہے. کس لیے؟ صرف اور صرف عمران خان کو دبانے کے لیے. میرے پاکستانیوں, جن سے ہمیں انصاف کی توقع تھی وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے. جو ہمارے محافظ تھے وہ ہمارے قاتل بنے ہوئے ہیں. جنہوں نے ہماری مینڈیٹ کی حفاظت کرنی تھی وہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ آپ لوگ ڈی چوک کر رہے ہیں. کچھ ٹاؤٹس جو رات کو میڈیا پر بیٹھتے ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ گولیاں چلائی جائے گی, گولیاں ماری جائے گی. آپ کے سامنے ہمارے ایک دوست نے کوہاٹ کے لیے سپاسنامہ پیش کیا. پورا سپاسنامہ آلریڈی میں پڑھ چکا ہوں اور ان سے کمٹ پک کر چکا ہوں کافی چیزیں, لیکن کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. جس میں شہریار بھائی نے گرلز کیڈٹ کالج کا کہا ہے, تو انشاءاللہ اس کا پریپوزل آلریڈی میں نے ان کو بول دیا ہے کہ مجھے بھیجیں, وہ انشاءاللہ تعالی صبح یہ حکومت کرے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو ہمارا گرلز کیمپس ہے کوہاٹ یونیورسٹی کا, اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کام تیز کر دیا جائے گا انشاءاللہ. 1000 بیڈز کا جو ہاسپٹل ہے وہ آلریڈی تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی کوہاٹ میں وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. وہ سارے تو میں نے دیکھ لیے ہیں. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں جو کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی. جو ضلع کوہاٹ میں بلیک ٹاپنگ کے لیے سڑک ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. بہرحال میں نے داؤد شیر دے خواہ. اچھا, واٹر سپلائی سکیم لاچی خدر خیل گلشا خیل, اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کام تیز ہو جائے گا. اس کے علاوہ سب سے اہم ایشو جو ہے وہ یہاں پر پینے کا صاف پانی کا ایشو ہے, تو وہ انشاءاللہ اس پر جتنا بھی خرچ آئے گا وہ حکومت خیبر پختونخوا کرے گی, اور ہم اپنی عوام کو صاف پانی مہیا کریں گے انشاءاللہ تعالی پینے کے لیے. یہ باقی سپاسنامہ یہ آلریڈی میں کمٹ کر چکا ہوں, چونکہ ایک ٹائم کم ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا. اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کی ویژن کے مطابق آپ کے لیے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی, زیرو ٹالرنس فار کرپشن, اور عمران خان کی ویژن کے مطابق انسانوں پر انویسٹمنٹ, یہ ہمارا جو ہے پرائم مقصد ہے انشاءاللہ تعالی.
जो आप लोगों को भी पता है कि 16,000 भर्तियां हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में की है। मैं चैलेंज करता हूं खैबर पख्तूनख्वा में तमाम मीडिया चैनल को, पूरे पाकिस्तान में मीडिया चैनल को, कि वो आए और इन 16,000 में एक नौकरी भी मुझे बताए कि ये सिफारिश हुई है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ हम 983 जेल वार्डर्स, 3100 लेक्चरर्स, 1800 पुलिस कांस्टेबल्स, 640 सीटीडी पुलिस, ये इंशाअल्लाह ताला जल्द आपके सामने आएंगी और इनको भी जो है हम भर्ती करेंगे। ये तमाम टेस्ट चाहे वो ऑटोनमस बॉडीज में हो या चाहे हुकूमती डिपार्टमेंट्स में हो, सब में तमाम टेस्ट ईटा के थ्रू होंगे और इसमें जो है मेरिट और ट्रांसपेरेंसी का खास ख्याल रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक बंदे को भी जो है वो सिफारिश पर नौकरी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। दूसरा, जो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन हम कह रहे हैं, हम ये भी चैलेंज देते हैं तमाम लोगों को कि वो करप्शन के सबूत लाएं, चाहे किसी भी के खिलाफ हो। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ हम गुड गवर्नेंस के लिए हमारे डीसी, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, जो डिविजनल इंतजामिया है और सूबे की लेवल पर जो इंतजामिया है, इनको हमने बोला हुआ कि आप सब ने ओपन डोर पॉलिसी रखनी है ताकि कोई भी बंदा, कोई भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में से एक भी बंदा आपके दरवाजे से खाली हाथ ना जाए। उसको सुनना आप सब पर फर्ज है और उसका मसला हल करना आप सब पर फर्ज है। मेरे अजीज साथियों, ये तमाम चीजें हम इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन परसों में सुन रहा था कि एक मैंडेट चोर जिसने लाहौर की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, जो जाली तरीके से, गलत तरीके से पंजाब की वज़ीर आला बनी है, जो का के ऊपर की के ऊपर के लिखती है, वो मुझे मशवरे दे रही है। अल्लाह का मेरी तौबा, मतलब का के अब मैं सुनूंगा। जिसका लीडर इमरान खान है वो पाकिस्तान का कबूल तरीन, मकबूल तरीन लीडर है और उसने हमारी तरबियत की है, तो हम किसकी सुनेंगे? किसकी सुनेंगे? यहां पर पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, यहां पर राज सिर्फ इमरान खान का होगा और अवामी राज ही इमरान खान का राज है। और ये इंशाअल्लाह ताला हम आप सबको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, मुझे मशवरे देने से पहले जरा अपने सूबे का हाल देखें। जो ताजा सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि पंजाब पुलिस पूरे पाकिस्तान में सबसे करप्ट तरीन इदारा बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हो रही है, पंजाब सबसे नीचे है पूरे पाकिस्तान में। ये तो इनका हाल है और मशवरे हमको दे रहे हैं। सिर्फ पंजाब का नहीं, जो ऊपर बैठे हैं मरकज पर, जो जाली तरीके से आए हैं, जो हमारी जाली वज़रा और जाली प्राइम मिनिस्टर है, वो भी हमें मशवरे दे रहे हैं। 5,300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है। मेरे पाकिस्तानियों, 5,300 अरब रुपए का मतलब 5,30,000 करोड़ रुपए की करप्शन इन्होंने की है। ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। बातें होती हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस की, लेकिन 5,300 अरब रुपए पर कोई भी बात नहीं करेगा। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का इंटरनल और एक्सटर्नल जो डोमेस्टिक कर्जा है, जो इंटरनेशनल कर्जा है, वो 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये आपके जीडीपी का
तकरीबन 72% बनता है। मतलब अगर आपकी टोटल जीडीपी 112 रुपए है, उसमें 80 रुपए आपने कर्ज में देने हैं। ये तो इनका हाल है। और एक हफ्ते पहले ये फिर गए हैं और 1.2 बिलियन डॉलर इन्होंने फिर कर्जा ले लिया है। हमें मशवरे देने वाले 80,000 रुपए के हमें मकरूज कर चुके हैं। हमें मशवरे देने वाले पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो 20 अरब रुपए पर हैं, वो भी लोन लेकर, और जो दोस्त मुमालिक है उन्होंने हमें कर्जा दिया हुआ है। और कुछ जो तकरीबन 60 से 70% आपके जो है ये लोन और बाहर मुल्कों के जो है कर्जे हैं। जो बाकी हमारे फॉरेन रिजर्व हैं वो रेमिटेंसेस से आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो डॉलर को मुस्नुई तौर पर रोका गया है, जिसका रेट ऊपर नहीं जा रहा, ये 2018 से पहले जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि ये माइंस लगा रहे हैं, जब ये डॉलर को छोड़ेंगे अपने रेट पर तो ये 300 साढ़े 300 रुपए से ऊपर चला जाएगा। ये क्यों हो रहा है? अभी आता हूं मैं। चूंकि तमाम इदारे, पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की ये जाली हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाने में लगी हुई है। तमाम इदारे और ये जाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खत्म करने में लगी हुई है। हम अदालतों में जाते हैं इंसाफ के लिए, अदालतों के जज हमसे मिलना भी गवारा नहीं करते। हम जाते हैं अपने लीडर से मिलने के लिए, वहां पर इमरान खान साहब की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में नाहक कैद किया हुआ है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दबाने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, जिनसे हमें इंसाफ की तवक्को थी वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे। जो हमारे मुहाफिज थे वो हमारे कातिल बने हुए हैं। जिन्होंने हमारी मैंडेट की हिफाजत करनी थी वो हमारे मैंडेट पर डाका डाल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास हल क्या है? हल क्या है? हल क्या है? आप लोग डी चौक कर रहे हैं। कुछ टाउट्स जो रात को मीडिया पर बैठते हैं वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो? डरते हो? मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, आप लोगों ने तैयार रहना है। इमरान खान साहब ने यह जिम्मेदारी, चाहे वो मुज़ाकरात की हो या एहतजाज की हो, वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दी है। लेकिन मैंने बजाते खुद उनसे मुलाकात की है और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। तो इंशाल्लाह जब भी उनकी तरफ से कॉल आएगी, आप सब ने तैयार रहना है इंशाल्लाह ताला। और हमने मिलकर हकीकी आजादी इनसे छीन के लेनी है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमाल